I come from Assam. You've heard about Neong. It's a town जहाँ पे black magic is practiced. They have a museum for black magic. वूडो डॉल्स ये सब रियल होता है. हाँ, big time होता है. व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ इट? कोई कितना गलत कर सकता है किसी के साथ? Worst is कोई किसी को मार सकता है. आपको लगता है कि गाइडेड मेडिटेशंस हेल्प करती हैं? बहुत ज़्यादा. मैं हमेशा क्लाइंट्स को बोलती हूँ कि गाइडेड. डू यू थिंक टैरो रियली टेल्स द फ्यूचर? नो, ये टैरो का सबसे बड़ा मिथ है. Is there any myths that you want to break for spirituality? Most people will tell me मैं तो कुरान पढ़ती हूँ, मैं पूजा करती हूँ, नमाज पढ़ती हूँ, so I am spiritual. That is not spirituality. That is you are following a religion. So आपके जो planets है वो आपकी family को represent करता है. Father is your son, Moon is your mother, Venus is your wife, your sister. If you put that, alcohol on your private part, it kind of activates your Venus. Hi, Ira. Welcome to Neha Kumra's show. Thank you. How are you doing this morning? Very well. How are you? There are many questions there in my mind, but I think I should start with very basic thing. Were you always connected to spirituality or something happened? No, I was never. I didn't even know what spirituality is. I was a normal girl having my normal life, but yes, certain things happened, and then I got connected. How? Well, since childhood, I was a gifted child. So I used to see things as a child, and that used to be very abnormal at that point of time. And my parents used to tell me कि किसी को मत बताना, this is not right. लोग सोचेंगे कि भूत है, ये है, वो है. So I would see things in my dreams. Then I would see things in reality. And they would come true? Not dream. I would see entities, spirits, or anything. There was always when I used to sleep. I haven't told in any of the podcasts. Today I'll tell you. When I used to sleep, there used to be an old man who would come and he would pray and he would bless me. That used to happen all the time. So after some time I got used to it. He would come. So when I grew up, so जब भी my parents took me to some astrologer or anybody, they would always say कि इनके ऊपर ना कोई बड़े बुजुर्ग की दुआएं हैं. Then I could relate that this is the person who would come and bless me. So when you got into spirituality, did you try find out who that person was? Somebody from your ancestors? I found out, so I have a blessing from my ancestors. Wonderful. How's your journey been as a healer? Quite tough. See, one challenge is from the clients I face. Second challenges I face in my personal life. Sometimes I question myself, am I on the right path? Whatever is happening, is this an illusion or is it reality? कभी कभी reality और illusion में ना पता ही नहीं चलता है कि क्या हो रहा है. So it is quite tough. What was your life like before you were a healer? Very normal. I was like a normal girl, having a corporate job. Everything was like any other person. Did your family and friends support you? Not exactly. They didn't understand what was happening. It took a lot of time. Still, my parents are not happy with what I do. They want me to have a government job. And I left my stable job. They're like, इतनी पढ़ी लिखी हो, इतना अच्छा कर रही थी, क्यों छोड़ दिया बेटा? I think that's the mindset everybody has, especially our parents, that like 9 to 5 job honi chahiye. Whatever passion you want to follow, you can follow it simultaneously. But then your main focus should be a degree and a stable 9 to 5 a conventional job. career. Conventional career, approved right. by society. Absolutely. My relatives started telling me कि ये तो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, कुछ और भी कोर्स कर लो, पैसे मिलते हैं तुम्हें. कौन पैसे देगा इस चीज़ के लिए? Many people are curious about spirituality, but they are also skeptical somewhere. है भी, नहीं भी. Is there any myths that you want to break for our viewers for spirituality? See, spirituality को हमेशा लोग religions के साथ confuse कर देते हैं. So most people will tell me मैं तो कुरान पढ़ती हूँ, मैं पूजा करती हूँ, नमाज पढ़ती हूँ, so I am spiritual. That is not spirituality. That is you are following a religion. You have a set rules in your religion, right? But in spirituality there are no rules. कुछ नहीं करके भी you can be spiritual. Spirituality means being conscious, being mindful. That is spirituality. You just mentioned Quran. So would you like to tell a little bit about your story, how you got married and what were the problems that you faced? Because a lot of people are struggling with intercaste marriages. I know the story, but I would like my viewers also to hear it, how it all happened and what challenges did you face, and anything that you would like to tell our viewers that problems to आएंगी relationship में. Every love really tests you. So what was your test like? See, I did not have tests, to be very honest.
I had an inter-state, inter-religion marriage. सब कुछ अलग था हमारा. And everything happened. And it was like destine था. My family agreed, his family agreed. और बहुत खुश है दोनों फैमिलीज. सो अगर वो डेस्टाइन होती है ना, सब चीज़ ठीक होती है. जैसे कि व्हेन आई बचपन में या वॉट एवर आई वॉज नॉट रिलीजियस, आई वॉज एन एथिस्ट. सो कभी रिलीजन में बिलीव ही नहीं किया. बट धीरे धीरे आई गॉट ड्रॉन टूवर्ड्स सनातन धर्म. सो नॉट ओनली सनातन धर्म, आई विल से देवी माँ. शी केप्ट शोइंग अप in my dreams and certain चीज़ें होने लगी and I got drawn and I started believing in her. I started fasting, going to mandir. So धीरे धीरे करते and then my husband came into my life. So one thing led to another and जैसे ही शादी हुई I learned all the Hindu traditions. सब कुछ my सासू माँ taught me everything. So it was easy and it was very beautiful. Any challenges that you faced from outside world apart from family? Always. घर वाले कुछ नहीं बोलते, घर वाले समझ जाते हैं. इट्स जस्ट बाहर वाले बिकॉज दे वांट टू टेक उनको मज़ा आता है. अगर आप में प्रॉब्लम नहीं भी है वो दिखाने की कोशिश करते हैं. सो यू हैव टू बी फर्म टुवर्ड्स देम. यू नीड टू बिलीव व्हाट यू आर इनटू. Like in the movie Two States, I remember they were getting married from two different religions within India. So it was quite tough. The parents were like, you will not be able to adjust. And even, this Rocky versus Rocky and Rani ki prem kahani, they are also, So I feel somewhere if you are in love or true love, things fall in place. Some people believe that energy healing is just a placebo effect. Like if I tell you you're healed, you somewhere deep down accept ki, chalo, ab mere ko heal kar diya, now I am, good to go. Do you think healing is a placebo effect? Well, it is both. It is and it is not. Placebo effect is what? That, आपको किसी ने बोल दिया, आपने मान लिया, है ना, हुआ ना हुआ. इवन आप मेडिसिन ले लो, आपने you popped a pill. Do you know it is working? क्या है? That is also a placebo effect, right? But healing actually works. But somebody cannot say that I healed you or you are healed because healing is a long process. चलता ही रहता है. It's a continuous process. It's not like today I do something on you and you're like नहीं, ये कभी नहीं होता ऐसे. Right. So ये वाली healing तो फिर मतलब right नहीं है because बहुत सारे healers ये कर रहे हैं कि I'm gonna send you healing from your one time कर दिया and हो गया. नहीं, healing में अगर healing देते हैं that will work for a certain period of time. उसके बाद you have to incorporate certain things जिससे आपको दोबारा वो चीज़ें ना आए. So आपको अपना lifestyle सारी चीज़ें change करनी पड़ेगी. हम healers की बात करें, so I also would like to talk about the tarot cards readers. There are some critics who say अगर tarot cards से life ठीक हो जाती है तो tarot card readers अपनी life क्यों नहीं ठीक करते, वो अपना future क्यों नहीं देख लेते. तो ऐसा होता है, do tarot card readers can really read their own future या अपने लिए किसी और के पास जाते हैं? सी सबसे पहले जब हम टैरो सीखते हैं ना, फर्स्ट चीज़ हमें बताई जाती है कि अपने लिए रीडिंग करो. सो एवरी डे रिलीजियसली यू मस्ट प्रैक्टिस दिस कि अपने लिए एक कार्ड पुल करो और रात को आके देखो कि एग्जैक्टली वो चीज़ें तुम्हारी लाइफ में हुई कि नहीं. Then you will know that your practice is strong, you are connected with your tarot cards and it is working for you. कोई चीज़ जब आपके लिए काम नहीं कर रही है, वो दूसरों के लिए कैसे काम करेगा? क्या ये ऐसे होता है कि जैसे मान लो मैंने सुबह अगर अपने लिए टैरो कार्ड निकाला एंड मेरे टैरो कार्ड में कुछ पॉजिटिव निकला, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स निकले या समथिंग, कुछ पॉजिटिव निकला, तो मेरा माइंडसेट कहीं ना कहीं पूरा दिन वो एक्सेप्ट करके चलता है कि सुबह वो निकला था, टुडे आई हैव टू बी लाइक ट्रूली पॉजिटिव, सब ठीक ही होगा. सो कहीं ना कहीं आप अपने माइंड में एक साइकोलॉजिकली एक सेट कर लो तो आज दिन अच्छा ही निकलेगा. ऑन द कॉन्ट्री अगर कुछ नेगेटिव निकला तो वो भी मतलब एक माइंड में रह जाता है कि आज बुरा जाने वाला है, आज तो जो होगा गलत ही होगा, मैं किसी से ना ही बात करूं तो बेटर है. डज दैट हैपन? यस. तो उस पर क्या होता है, जब अच्छा आया तो अच्छा आया, सब कुछ ठीक रहेगा. जब बुरा कार्ड आता है ना तो ऑलवेज पुल अनदर कार्ड टू सी व्हाट इज़ द गाइडेंस. अगर मेरे साथ ये होने वाला है तो मैं आज का दिन क्या एक्स्ट्रा करूँ, क्या अलग करूँ ताकि मेरा आज दिन अच्छा जाए. दैट इज़ हाउ टैरो विल हेल्प यू. डू यू थिंक टैरो रियली टेल्स द फ्यूचर? नो, ये टैरो का सबसे बड़ा मिथ है. टैरो इज़ नॉट अ प्रेडिक्शन टूल, इट इज़ अ गाइडेंस टूल. ये आपको गाइड करने के लिए है स्टेप बाय स्टेप. हाउ डज इट गाइड? इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, हाउ डज इट गाइड? यू वांट टू टेक अप अ जॉब एंड यू आर कमिंग टू मी एंड यू वांट अ आंसर कि मैं ये जॉब लूँ या ना लूँ. सो दैट इज़ नॉट टैरो, दैट इज़ अ येस और नो क्वेश्चन आई विल आंसर. सो दैट
kills the essence of tarot. I have to tell you कि अगर आप ये जॉब लेते हो, these are the challenges या these are the opportunities, ये सारी अच्छी चीज़ें आपके साथ होगी. अगर आप ये जॉब नहीं लेते हो तो ये सारी चीज़ें आपके साथ होगी. And the choice and the decision is in your hands. Right. So I would say it's, like you said, it's more of guidance than a yes and no. Tarot gives you the clarity and gives you the power to make a educated choice or a choice for yourself, the right choice. But isn't it same for every modality? Like you talk about astrology, you talk about numerology, even the angel healing and whatever we've learned and we've seen around, even Akshik records. Aren't they all the guidance only? Yes, definitely. Everything is for guidance. Nothing is to build your life. You have to build your life. Right. A lot of people say that अगर सब कुछ लिखा हुआ ही है तो फिर काम क्यों करना है, या फिर अगर पता ही कि इस जॉब में जाके मुझे 2 महीने बाद या 6 महीने बाद निकालना ही है, वो मेरे कार्ड्स में लिखा हुआ है, तो फिर मैं रोज जाऊं ही क्यों? ये रिलेशनशिप ब्रेक होना ही है. एक गंदा बॉस मिलेगा, कैसे पता चलेगा गंदा बॉस होता क्या है? जब नेक्स्ट अच्छा बॉस मिलेगा उसकी कदर करना कैसे सीखोगे आप? So I think that goes in the relationships also, that until you meet the wrong ones, you can't value the right ones. So you have to, learn through every experience, every relationship in life. How does energy healing change our emotions, our relationships, and our life decisions? Well, energy healing is basically moving inwards. So उसमें देखो energies of two types. आपकी अपनी energy होती है और एक environment की energy होती है, जैसे place, people, everything. So place, people you cannot change. ठीक है. So energy healing में आपको अपनी energy को heal करना है, अपनी energy को change करना है. Because whatever you are inward, you are reflecting it to the outer world. So अगर आपका यहाँ सुंदर है, अच्छा है, शांत है, तो बाहर कुछ भी हो, nothing will matter. Right. So basically energy healing is working on your own energy. कई बार हम बोलते हैं ना कि जैसे किसी की एनर्जी बड़ी नेगेटिव है, वो एंटर करता है तो आपको पता चल जाता है कि यार आज कुछ ठीक नहीं है, द एनर्जी, द वाइब इज नॉट राइट. डज दिस रियली हैपन, और ये हमारा ही माइंडसेट होता है बस? नहीं होता है. कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैवी एनर्जीज होती है और उनके साथ बात भी करो तो यू विल फील ड्रेन्ड. अगर ऐसे लोग आपको लगता है योर बॉडी हैज़ सुपर पावर्स, आपको बॉडी पहले ही बता देगी, आपके गट फीलिंग पहले ही बता देगी कि दिस पर्सन इज़ नॉट राइट फॉर मी. सो जब आपको इसीलिए ना आप व्हेन यू आर मूविंग इनवर्ड्स, आपको अपने बारे में पता हो, मैक्सिमम लोग अपनी गट फीलिंग को समझ ही नहीं पाते. सो जब गट फीलिंग आती है दिस पर्सन इज़ नॉट राइट, हट जाओ वहाँ से, क्योंकि बाद में पता ही चलता है मुझे पहले ही पता चल गया था ये सही नहीं था. सो योर बॉडी इज़ ऑलवेज गिविंग यू साइंस. व्हाट आर द मेन रेड फ्लैग्स दैट योर बॉडी टेल्स यू? कुछ ऐसे कुछ साइंस होते हैं जो फॉर us to understand कि अगर हमें ये फीलिंग हो रही है तो ये ठीक नहीं है, मतलब सो फर्स्ट तो ये होता है कभी भी आप किसी से मिलो ना, वो जो अंदर की खुशी होती है या कुछ पॉजिटिव जो चीज़ होती है ना वो चली जाती है. सडनली यू विल फील लो ऑन एनर्जी, वो सबसे बड़ा साइन होता है. एंड सेकेंड, जब आप बात करने लगो आप और थोड़ा लो फील करोगे एंड वो कनेक्ट नहीं होता है. एनी पर्सन हु इज़ नॉट मेंट टू बी विथ यू और शेयर योर एनर्जी, आपको कभी भी उसके साथ कनेक्टेड फील होगा ही नहीं. सो इंट्यूशन राइट होती है, गट फीलिंग या सुपर स्ट्रॉन्ग सबकी होती है. वी ऑल आर गिफ्टेड. विमेन की तो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, मेन की भी होती है. मतलब मुझे लगता है उनको सब कुछ अच्छा लगता है, उनको तो कभी कुछ गलत लगता ही नहीं है. बेसिकली वो ना बहुत ज़्यादा अपर लेयर पे रहते हैं, ज़्यादा सोचते नहीं है. और हम वुमेन हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, हम अपने 5 सेंसेस को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. दैट्स व्हाई परफ्यूम्स में सबसे ज़्यादा मैन है या वुमेन है, तो इसीलिए. बट सबके पास सेंस वो होती है, इंट्यूशन, और स्ट्रॉन्ग होती है सबकी. I've seen a lot of men, they're not looking at your face, they're looking at your body. So एक सेकेंड में पता चल जाता है कि उसकी क्या mindset है. Even with another female, if I'm meeting another female or my husband is meeting some female, I would gather the vibe very quickly कि stay away from her, she's not a good news. Men, I don't know, उनको नहीं समझ में आता, but वैसे उनके लिए सारे आदमी ठीक होते हैं, all men are very nice, men are not dogs. But the moment your girlfriend or your wife is talking to a man who's not right, suddenly उनकी इंट्यूशन जाग जाती है. वैसे उनको सब ठीक लग रहा होता है, सब बढ़िया है, सब बढ़िया है, सब बढ़िया है. जब आपकी वाइफ आपको बता रही है कि ये गलत है, ये गलत है, उनको नहीं नहीं सब ठीक है, सब ठीक है, तब उनको नहीं दिखता वो.
why is this difference between their intuition? See, they are masculine energy and men are very selective. घर पे भी आप कुछ भी बात करो ना, वो आप कुछ भी बोल रहे हो वो वही सुनेंगे जो सुनना चाहते हैं. सो हर चीज़ में सिलेक्टिव है. इनफैक्ट इमोशंस को लेके भी दे आर सिलेक्टिव कि कौन से इमोशन में मुझे सैड होना है, नहीं होना है, एवरीथिंग. इस पे नहीं रोना तो नहीं रोना. फॉर वुमेन नहीं रोना है, मतलब आएगा ही, वी कैन नॉट कंट्रोल दैट, बट वो इनबिल्ट है उनका. समटाइम्स जब हम हीलिंग कर रहे होते हैं ना, लाइक यू सेड कि आपको तो बियॉन्ड द पर्सन दिख जाता है, कुछ ऐसा हमें दिखता है जो शायद सामने वाला बंदा सुनना भी नहीं चाहता, और आई वुड से कि आप भी कंफर्टेबल नहीं होते बताने के लिए. कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? बहुत बार हुआ है. I see a lot of things, but when you are a healer, you're sitting on this side of the table, you have to be very sensitive, matured and emotionally intelligent. क्लाइंट के पूछने पे भी आपको आंसर नहीं करना होता है कुछ चीज़ें, विच आजकल के लोगों को, हीलर्स को वो चीज़ नहीं पता. जैसे कोई आई लेडी, उन्होंने मुझे बोला टैरो में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट क्वेश्चन इज़ आस्क्ड और कौन से क्वेश्चंस हम आंसर करेंगे नहीं करेंगे. कोई लेडी आई एंड शी आस्क्ड मी कि मेरे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है, आप देख दो. मैंने देखा देयर इज़ अ थर्ड पार्टी, कोई लेडी है. आई विल नॉट आंसर हर. बट इफ शी आस्क्स यू पॉइंट ब्लैंक कि आई हैव दिस फीलिंग दैट कोई थर्ड पार्टी है, तो हाँ, देन आई विल चेक. बट उन्होंने मुझे बोला फर्स्ट क्वेश्चन कि मेरे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है, आप देख दो. इफ़ आई सी अ लेडी है, दिख जाता है वो, आई विल नॉट टेल हर बिकॉज उसने मुझे ये नहीं पूछा. तो मैं स्टेप बाय स्टेप जाऊँगी. उसके बाद अगर मुझे बोलती है कि मुझे लगता है कि देयर इज़ अ थर्ड पर्सन, आप देख दो, अगर मैं देखती हूँ देन आई विल टेल हर कि देयर इज़ अ थर्ड पर्सन. अगेन एक इंसिडेंट हुआ, आई विल टेल यू, दिस वाज वेरी वियर्ड. नॉट मी, किसी लेडी के पास, टैरो रीडर के पास एक लेडी गई और बोला मेरे हस्बैंड के ना उनके एक कुलीग के साथ अफेयर चल रहा है एंड आई वांट टू कंफर्म फ्रॉम यू कि वही है क्या. देन वो लेडी ने बोला ओके. तो उन्होंने बोला कि दिस इज़ द नेम ऑफ द लेडी, उनकी कुलीग का, आप देख दो कि यही है. तो टैरो रीडर ने बोल दिया कि हाँ यही है. यू नो व्हाट द लेडी डिड? शी स्ट्रेट अवे वेंट टू द ऑफिस और सबके सामने उस कुलीग को थप्पड़ मारा. एंड उसके बाद उस लेडी के घर पे, उसका भी बच्चा है, हस्बैंड को फ़ोन करके बता दिया कि ये सब चल रहा है. सो उससे दो घर था, वी डोंट नो. टैरो रीडर की बात थी, 2 टैरो कार्ड्स निकाले. हाउ डू यू नो कि वो इतनी इफेक्टिव थी? 100% रीडिंग्स आर नेवर गारंटीड कि 100% होगा, बट उससे 2 घर तो बर्बाद हुए ना. तो फर्स्ट रूल ऑफ ऑकल्ट इज़ आप कभी भी किसी का नाम नहीं लोगे. आप देखना ब्लैक मैजिक किया है, लोग पूछते हैं किसने ब्लैक मैजिक किया बता दो, कभी नाम नहीं लेते हैं. व्हाई? बिकॉज आप जाके अगर कुछ कर दो उस कर्मा के रेपरकशंस होंगे, वो कौन लेगा. तो ये सारी चीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जो अलाउड, सी जो रूल्स है आपको पता है क्योंकि आपने सीखा है. सो यू हैव टू स्ट्रिक्ट विथ योर रूल्स कि नहीं बताऊंगी तो नहीं बताऊंगी. 2 घर तो बर्बाद हो गए, आपने शक का बीज तो डाल दिया ना घर पे. आपको लगता है शक सही होता है? होता है. क्योंकि जब तक, जैसे हम कहते हैं ना, जहाँ चिंगारी होती है वहीं आग लगती है. सो कुछ तो चेंजेस होते हैं एक कपल के बीच में, जिसकी वजह से एक वाइफ को एक इंट्यूशन आती है कि कोई और है. समवेयर यू फील कि नहीं ये कहीं और जा रहा है, या इवन फॉर हस्बैंड कि ये कहीं और जा रही है, शी इज गेटिंग दैट पीस फ्रॉम समवेयर एल्स. सो डू यू थिंक कि जो इंट्यूशन होती है वो 100% होती है? कैन अ वाइफ रियली और हस्बैंड रियली सेंस कि कुछ गड़बड़ है, या हम अपने ओवर थिंकिंग में चल रहे हैं लाइफ? नहीं, एज आई सेड, इंट्यूशन सबकी होती है. तो ऑफिस में भी कोई एम्प्लॉय छोड़ के जाने वाला होता है, आपको पता नहीं चल जाता कि हाँ दिस पर्सन इज लुकिंग आउट, है ना. तो रिलेशनशिप में भी अगर यू आर अटैच टू समबडी, उसके बॉडी लैंग्वेज से ही आपकी बॉडी को अंदर से पता चलने लग जाएगा समथिंग इज़ ऑफ, समथिंग इज़ रॉन्ग. तो वो होता है, 90% चांसेस में होता है. बट हैविंग सेड दैट, कुछ लोग शक्की भी होते हैं बिकॉज उनको ना वो नहीं होता, अपने रिलेशनशिप में फेथ नहीं होता है, इनसिक्योरिटी इश्यूज होते हैं, वो हर बात पे शक करते हैं. तो ये दोनों बहुत ट्रिकी है. क्या बेसिकली अंडरस्टैंड करना चाहिए किसी भी एक लेमैन को कि ये मेरा शक है या ये मेरी ओवर थिंकिंग है? मतलब जो मेरे को जो डाउट हो रहा है वो मेरी इंट्यूशन है या मेरी ओवर थिंकिंग है या मेरे इनसिक्योरिटीज है? कैसे डिफरेंशिएट कर सकता है कोई भी एक नॉर्मल इंसान? सी पहले तो अगेन यू हैव टू मूव इनवर्ड, यू हैव टू नो कि आप क्या हो. मैक्सिमम लोग ना दूसरों को समझने निकल जाते हैं और दूसरों को चेंज करने निकल जाते हैं, बट आप खुद को जानो ना. अब जब आप खुद को जानो, को पता चल जाएगा कि आप शक कर रहे हो क्या कर रहे हो. तो उसके लिए अपनी हीलिंग करानी चाहिए. खुद हीलिंग करो. कैसे?
देखिए, सेल्फ हीलिंग इज़ द बेस्ट हीलिंग। आपको कभी किसी के पास नहीं जाना है। बीइंग अ हीलर आई एम टेलिंग यू। सो हीलिंग क्या होती है बेसिकली, अगर आपकी उंगली में चोट लग गई, ब्लड निकल गया, तो खुद ब खुद वो बंद हो जाता है। सो आपकी बॉडी की हीलिंग प्रोसेस है। सिमिलरली आप किसी रिलेशनशिप में यू हैड अ बैड ब्रेकअप, कुछ टाइम बाद आप भूल जाते हो धीरे धीरे। टाइम इज़ द बेस्ट हीलर। सो खुद की हीलिंग के लिए आप खुद के साथ बैठना शुरू करो। स्पेंड सम टाइम विथ योरसेल्फ। आपको कोई कोर्स नहीं करना मेडिटेशन का, ये वो कुछ नहीं। 10 मिनट्स अपने साथ बस बैठना शुरू करो। ट्राई टू नो व्हाट यू आर फीलिंग। अपने फीलिंग्स को फील करो। जब तक फील नहीं करोगे ना, आप खुद को हील नहीं कर पाओगे। यू विल नो, आप जब बैठोगे ना, यू विल नो कि आप खुद के साथ बैठ ही नहीं पा रही हो। फीलिंग एंग्शियस, आपके चेस्ट में पेन हो रहा है, या कोई एक थॉट है बार बार आ रहा है। सो यू विल नो योर बॉडी, माइंड, एवरीथिंग इज हेल्पिंग यू, टेलिंग यू दैट व्हाट यू नीड टू टारगेट एंड व्हाट यू नीड टू हील इन योरसेल्फ। बस 10 मिनट का बैठने का प्रैक्टिस करो खुद के साथ। बैठ गए, पता चल गया कि ये खराब है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ आई सेट, आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, इफ आई सेट समवेयर, मेरे को एंग्जाइटी होने लग जाती है कि कैसे होगा, कैसे करेंगे। लेट्स से पॉडकास्ट है, सब ठीक हो जाएगा, एंग्जाइटी हो रही है, ये मल्टीपल थॉट्स आ रहे हैं, व्यूअर्स क्या सोचेंगे, हम क्या कैसे करेंगे। सो क्या रीजंस होते हैं इन एंग्जाइटीज के, या क्या मेरे को हील करना चाहिए अपने लिए जो मेरे को ये इश्यूज ना आए, एंड आई एम थिंकिंग पॉजिटिवली टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉडकास्ट और नेक्स्ट सेशन दैट आई एम टेकिंग। ये इश्यूज हमेशा आएंगे, बिकॉज ज़िंदगी जीनी है तो यू विल हैव इट ऑलवेज। बट हाँ, हाउ यू वांट टू डील विद इट वो अलग है। सो अगर आपको ये आ रहा है तो थोड़ी देर अपने साथ बैठो, प्रैक्टिस प्राणायाम, थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप करना शुरू करो, अपने आप को काम डाउन करो। जहाँ आप खुद को काम करोगे ना, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ों पे अभी फोकस करना है। यू फोकस ऑन थिंग्स विच इज़ इंपॉर्टेंट टू यू। कि लोग क्या सोचेंगे दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। यू नीड टू एन्जॉय योर पॉडकास्ट। आप एंजॉय करोगे, वो बाहर के लोगों को दिख जाएगा। यू नीड टू हैव फन बिकॉज इट्स योर लाइफ, राइट? इट्स योर पॉडकास्ट, आपकी मर्जी है। सो द फोकस शुड बी योरसेल्फ। खुद के साथ बैठो और अपने आप के फोकस करो, अपने काम पे फोकस करो। आपको लगता है कि गाइडेड मेडिटेशंस हेल्प करती हैं? बहुत ज़्यादा। मैं हमेशा क्लाइंट्स को बोलती हूँ कि गाइडेड मेडिटेशन यूट्यूब में फ्री में है। कोई भी 10 मिनट का कोई भी गाइडेड मेडिटेशन आप शुरू कर दो, यू विल सी मैजिकल चेंजेस इन योर लाइफ। यू विल बिकम अ डिफरेंट पर्सन। तो गाइडेड मेडिटेशन में कोई एक सेट रूल होता है कि यहीं बैठ के करनी है, सोते हुए करनी है, जागते हुए करनी है? जो मर्जी, लेटे लेटे कर लो, सोते सोते कर लो, कुछ नहीं हो रहा ना। रात को जब आप सो रहे हो, हीलिंग फ्रीक्वेंसीज आती हैं, गाइडेड मेडिटेशंस आते हैं, वो साइड में लगा के सो जाओ। अब बस सो जाओ, आपकी बॉडी खुद ब खुद काम करना शुरू कर देगी। आपको कुछ नहीं करना है। Do you think people get dependent on the healings or these guided meditations, and they stop taking decisions? So do you think people become too much dependent on their healers for everything? Is it reducing the capability of people to face life, and the challenges? उनको लगता है कि ये मेरा comfort zone है, इस comfort zone में जाके, and उसकी वजह से मुझे लगता है लोग friends भी नहीं बनाते हैं, उस लाइफ के friends हैं भी नहीं। मतलब I don't know, what's your point on that? बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं लोग। एंड अभी क्या है, पीपल डोंट वांट टू डू द वर्क। सो उनको लगता है क्विक फिक्स, आप मुझे हील कर दो, पैसे दे देते हो, आप हील कर दो। तो ऐसे नहीं होता है। कुछ भी हो जाए, आप जिम भी जाते हो ना, द ट्रेनर कैन ओनली टेल यू, घर आके डाइटिंग आपको ही करनी है। देयर आर सर्टेन रूल्स। जब आप टैरो कर रहे हो, सो हमारी जो बॉडी की एनर्जी होती है वो 21 डेज में चेंज होती है। सो एक सेशन के बाद यू शुड गिव अ गैप ऑफ एटलीस्ट 21 डेज फॉर द नेक्स्ट सेशन। सो व्हेन आई एम डूइंग रीडिंग्स, आई ऑलवेज टेल द क्लाइंट दैट यू विल कम टू मी ओनली आफ्टर 21 डेज, अगर ज़रूरत है तभी। अगर 21 डेज बाद उसको ज़रूरत लगी, मतलब अगर उसको पता चल गया कि 21 डेज तक मैं दोबारा नहीं आ सकती, बट बीच में कोई प्रॉब्लम आ जाए जो उनको लगता है कि नहीं ये तो यही सॉल्व कर सकते हैं, डू यू थिंक दे वर्क ऑन देमसेल्व्स? पीपल जस्ट कम, दे टेल देयर स्टोरीज and they don't want to work. So if I tell them a guided meditation, they don't want to work on themselves. They have made healers as their a personal diary. कि आया, सब कुछ बताया, लिखा, अपने आप को हल्का कर लिया और चले गए। उसके बाद में दे डोंट वांट टू डू द सेल्फ वर्क। आप उनको बोल रहे हो कि आपने रोज एक गाइडेड मेडिटेशन करके रात को सोना है। This will make you understand your past, your future, what is happening, what are the blockages. जैसे हम चक्रा हीलिंग कराते हैं, nobody wants to do it. After 1 week, they are ready to take the session. After whatever, I take weekly sessions because I'm more into couple counseling. So
they're ready to take the next session, they're ready to pay for the session, but अपने ऊपर काम नहीं करना. ये क्या psychology होती है? मतलब I really want to understand. See, this is with 90% of the clients. They would not want to work on themselves. उनको लगता है कि थेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं, टैरो रीडर के पास आ रहे हैं, अब यही सब कुछ सॉल्व कर देगी मेरी ज़िंदगी में, मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा. तो ऐसी मेंटालिटी वाले जो लोग होते हैं ना, उनकी प्रॉब्लम्स कभी सॉल्व नहीं होती है. बिकॉज यू विल हैव टू वर्क, सो यू नीड टू टेल पीपल दैट यू हैव टू वर्क. अब इंडिया में जो है रेमेडी कल्चर है हमारा. टैरो रीडिंग के बारे में बोलती हूँ. टैरो रीडिंग इज अ गाइडेंस टूल. सो बाहर आप जाओगे ना, सिर्फ आपको टैरो से गाइडेंस दिया जाएगा. देयर इज नो रेमेडी, टोना, टोटका, नथिंग. आपको क्लैरिटी मिल गई, आप चले जाओ. इंडिया में अब जब टैरो रीडिंग करोगे, मैम कुछ बता दीजिए, आपने तो रेमेडी ही नहीं दी. दे डोंट कम फ्रॉम गाइडेंस. हाँ, कुछ ना कुछ तो मुझे दो कि मैं करूँ. सो उनको हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए होती है, बिकॉज दे वॉन्ट टू पुट इट ऑन समबडी एल्स कि उन्होंने रेमेडी दी, मेरा हुआ नहीं. बिकॉज सेल्फ वर्क नहीं करनी है. सो वो मेंटालिटी चेंज करनी पड़ेगी. मतलब हमें लगता है पत्थर पहनना आसान है rather than मतलब कि खुद वो कर लो. अभी अब प्लैनेट्स के जितने भी रेमेडीज है, उसमें क्या है, सेवा करनी है आपको, डोनेशंस करने हैं. कितने लोग जाके सेवा करते हैं. डोनेशन इज ईजी, कुछ खरीद के दे दो, हो गया डोनेशन. बट सेवा भाव से सबसे ज़्यादा प्लैनेट्स इफेक्ट होते हैं. पीपल डोंट डू दैट. हर चीज़ ना खुद से शुरू होती है पहले, एंड उसके बाद आपकी फैमिली से. सो आपके जो प्लैनेट्स है वो आपकी फैमिली को रिप्रेजेंट करता है. फादर इज़ योर सन, मून इज़ योर मदर, वीनस इज़ योर वाइफ या सिस्टर, मंगल इज़ योर ब्रदर. सो अगर आप घर पे ही जो प्लैनेट्स हैं उनको सही से ट्रीट नहीं कर रहे हो, बाहर जाके कुछ भी मंगल की रेमेडी कर लो, सूर्य की रेमेडी कर लो, इट विल नॉट वर्क. सो पहले घर के लिए. एंड बाहर हम क्यों करते हैं? जस्ट टू शो ऑफ कि देखो मैंने इतना कर लिया, अपनी ईगो बूस्ट करने के लिए. बट शो ऑफ नहीं करना है, आपको वो भाव लाना पड़ेगा. आप किसी चीज़ को कोई डोनेट भी कर रहे हो. अब बहुत सारे लोग आते हैं ना मेरे पास कि कुछ चीज़ डोनेट करने हैं, तो वो सस्ता चीज़ डोनेट करना चाहते हैं. आप चाहते हो करोड़ रुपए मिल जाए, लेकिन आप 10,000 का स्पेंड नहीं करना चाहते हो. सो हाउ विल दैट बैलेंस इट? सो इसीलिए बाहर मत करो, घर पे करो. अगर आप अपना सूर्य ठीक करना चाहते हो, हैव अ गुड रिलेशनशिप विद योर फादर, ही इज एवरीथिंग. सब कहते हैं कि अंबानी को नजर नहीं लगती. अंबानी को लगे या ना लगे, आपका बहुत कुछ खराब हो जाएगा जस्ट बिकॉज यू आर ऑपरेटिंग फ्रॉम दैट वाइब्रेशन. जो ये जेलसी होती है, ये क्या आपका खराब करती है? बहुत ज़्यादा खराब करती है. एंड जेलसी ना, लोग इफ़ यू जेलस फ्रॉम मी, ठीक है, हर होता है, आई कैन नॉट कंट्रोल यू, बट इफ़ आई बिलीव आई एम होल, सो यू कैन नॉट डैमेज मी. जितना भी आप जेलसी करो, उल्टा मेरा अच्छा ही होगा. बट लोगों को ना उसको ऐसे ले लेते हैं, लोग मुझसे चलते हैं, लोग ये है वो है, उसको भी एक बहुत वो बना लेते हैं. सो वो नहीं करना चाहिए. जैसे ही आप बोलोगे लोग मुझसे जलते हैं, आप अपने ऑरा को वीक कर रहे हो. यू आर लेटिंग दैट एनर्जी इन. तो हमेशा अच्छी अफर्मेशन देना है. द पीपल लव मी, आई एम लव्ड, आई एम ब्लेस्ड, ऐसी चीज़ें. जो नजर होती है वो रियल होती है? हाँ, होती है. कैसे? मतलब हाउ कैन यू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम नजर? सी अगेन, इट्स योर ऑरा. आप कुछ भी पहन लो, कुछ भी करो, अगर आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग नहीं है, नज़र इज़ गोइंग टू अफेक्ट यू. नज़र इज़ व्हाट? एनर्जी. एवरीथिंग इज़ एनर्जी. सो जैसे ही आप दूसरों से वैलिडेशन मांगोगे, मैंने ड्रेस पहनी है एंड अभी ड्रेस पहन के जितनी भी अच्छी लग रही है, आई एम वेटिंग कि कोई मुझे कॉम्प्लीमेंट करे. व्हाट आई एम डूइंग, आई एम ओपनिंग माई ऑरा, ऑरिक फील्ड, कि आओ कॉम्प्लीमेंट दो. जैसे ही वो कॉम्प्लीमेंट आएगा, उसके साथ उस इंसान की जेलसी, निगेटिविटी, सब कुछ मेरे अंदर आएगी. बट व्हेन आई एम होल, आई डोंट वांट कॉम्प्लीमेंट्स. मुझे पता है कि मैं अच्छी लग रही हूँ, मैंने ऑरा लॉक्ड है, मेरा कोई ज़रूरत ही नहीं है. यू डोंट हैव टू डू थिंग्स फॉर अदर्स. आई थिंक ये बहुत मेजर पॉइंट है कि हम सब कुछ आजकल वैलिडेशन के लिए कर रहे हैं. इंस्टाग्राम ने तो वैसे ही सब कुछ ऐसे ओपन कर दिया सबकी लाइफ कि अगर इंस्टाग्राम पे लाइक्स नहीं आए तो आप जो करो बेकार है. इट हैज बिकम लाइक दैट. इंस्टाग्राम पे ना एक और चीज बहुत ज्यादा मिसयूज्ड है, व्हिच इज स्पिरिचुअलिटी. It's a business. Yes, it has become a business now. Everyone is just one day they stand up and they want to become a healer. How does one know that the healer is right? What are the guidelines that one should follow before they choose a healer for themselves or a spiritual guide? What are your thoughts on that? See, Instagram पे आप कुछ भी देख रहे हो ना, you are making a choice. So लोग ये देखते हैं बहुत followers हैं, बहुत views हैं, तो ये बहुत अच्छी होगी, अच्छी अच्छी बातें बोल रही है, अच्छी होगी. नहीं, आप उस इंसान को follow करो, देखो, do you connect with that person? आपको अगर अंदर से कनेक्शन फील होता है, only then you need to go to that person. और सबके पास नहीं जाना है, अपनी एनर्जी एक्सेस नहीं देना है. एंड जब तक आपको नीड नहीं है, आपको जाना भी नहीं है. जैसे मैंने बोला ना, हेल्प योर सेल्फ. हाँ, आप परेशानी में हो, आपको कोई गाइडेंस चाहिए, तब जाओ. एंड आई विल टेल यू, जो अच्छे लोग हैं ना, बेस्ट ऑफ द पीपल, दे नॉट ऑन इंस्टाग्राम. अभी एक लेडी को देखा, उन्होंने शाहरुख खान का जो घर है, शी नेम्ड इट. अमिताभ बच्चन का जो घर है, शी नेम्ड इट. आई फॉरगॉट हर नेम.
You know how many followers she has? Be less than 1,000. 15,000 only. वैसे तो हम देखेंगे भी नहीं who she है ना. So जो अच्छे लोग हैं, they're not even on Instagram. They're doing their real work. So जब भी आप किसी healer के पास जाओ, किसी के पास भी जाओ, first rule of thumb, always go through reference. 2-3 लोगों से अगर आपको अच्छा reference मिले तभी जाओ. Otherwise don't go because you will end up messing your life. But healers लोग share भी नहीं करते that I'm going to a healer. ये एक थोड़ा सा टैबू है अभी भी कि मैं दिमाग के डॉक्टर के पास जा. हाँ, why do you have to go? क्या करना है? या रादर इसको मैं एक और नजरिए से देखती हूँ कि अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई होती है ना, तो समटाइम्स यू लैंड अप सेइंग तेरे को थेरेपी की जरूरत है. दैट हैज बिकम लाइक अ गाली, कि तुझे थेरेपी की जरूरत है. वी वांट टू डीमीन समबडी, which is wrong. And if you are taking healing nowadays, so big celebrities talk about the healings that they have taken and the work they have done for themselves. People should talk about it. People should be more open towards how they have come out of their concerns. So what do you think that a person should look for when they are looking for a healer? So then you need to find that connection. अगर आप कनेक्टेड फील करते, हमने पहले बात किया था वाइब्स. सो आपको लगता है कि दिस पर्सन, देखो आई विल टेल यू, हीलिंग इज समथिंग ना, वो ऊपर से आते, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट. जिसके हाथों आपकी हीलिंग लिखी हुई है ना, उससे ही होगी, किसी और से नहीं होगी. सो आप खुद ब खुद उस इंसान की तरफ अट्रैक्टेड हो गए एंड यू विल फील द वाइब, यस दिस पर्सन कैन हेल्प मी, दिस पर्सन कैन हील मी. अब तभी जाओ. बहुत लोगों का क्या होता है, रैंडम, आज इसके पास, कल उसके पास, कल उसके पास. कुछ तो प्राइस चार्ट देख के जाते हैं. डोंट मेक दोज पैरामीटर्स, मेक योर पैरामीटर कनेक्ट, वाइब्स, वो सारी चीज़ें. आपने जो प्राइस टैग की बात करी, lot of people charge crazy amounts for healing. I have certain amounts set for my sessions. You have certain amounts set for your sessions. कोई एक line draw करनी चाहिए when you're doing spiritual work. Yeah, how do you decide what should be your session cost? No, you cannot draw a line here because it is energy work. Energy cannot be measured. So easily you get to decide what you will charge depending on what kind of energy you are giving into the healing. आपको पता चलेगा कि इस इंसान के केस इतना बड़ा है, ये है, वो है, आई हैव टू वर्क सो मच, मेरी इतनी ज़्यादा एनर्जी जाएगी, तो यू हैव टू चार्ज अकॉर्डिंगली एंड यू शुड ऑलवेज चार्ज गुड. कभी भी स्पिरिचुअलिटी इज़ नॉट चैरिटी, हीलिंग इज़ नॉट चैरिटी. यू आर गिविंग योर एनर्जी और आप अपने बॉडी से दे रहे हो, आप अपने कर्मों से दे रहे हो. सो इसीलिए यू नीड टू चार्ज गुड फॉर योरसेल्फ. कोई भी ना कुछ भी अमाउंट चार्ज कर रहा है आजकल. मतलब आई एम नॉट सेइंग चलो आप एक एक्सपीरियंस से बात कर रहे हो, आपने इतने सालों से वर्क किया है. देयर आर पीपल हु टॉक फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस एंड दे चार्ज फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस. पीपल आर चार्जिंग crazy numbers with maybe no experience. And how much experience one should have in healing before they should come into a real-time charging practice? See, at least 2 to 3 years you should invest in healing yourself because हमारे खुद के इतने unhealed traumas होते हैं ना, तो shadow work is must. At least 2-3 years heal yourself and then come into healing. Since how long you've been healing? It's been 15-20 years. एक चीज और है, many healers talk about negative energy और black magic. Black magic होता है? Definitely होता है. How does it happen? I mean, can I just think bad about you and bad will happen? Yeah, sometimes if मेरा aura weak है बहुत ज़्यादा, so I will catch it. Do you genuinely believe that this is like not psychological? जैसे हमें लगता है कि यार उसने like we spoke about नज़र. So ऐसे जैसे वो वूडो डॉल्स ये सब रियल होता है? हाँ, बिग टाइम होता है, कब सदियों से चल रहा है. मतलब I somehow still don't understand and agree this part. But क्या इसमें मतलब what is the intensity of it? कोई कितना गलत कर सकता है किसी के साथ? Worst is कोई किसी को मार सकता है. Oh my God, really? Yeah. How? वुडू का जो कॉन्सेप्ट है ना, जो डॉल बनाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं वो, दे विल यूज़ योर DNA है, नाखून, एक डॉल बना लेंगे विच विल रिप्रेजेंट यू. उसके बाद उसको आपका जैसा बनाने के लिए आपके DNA की चीज़ें डालेंगे, जैसे हेयर हो गया, नाखून हो गया, आप बन गए ना. उसमें एक जान फूकनी पड़ेगी बिकॉज यू ऑल्सो हैव लाइफ. सो दे विल इन्वोक एनर्जीज, एंटिटीज, नेगेटिव एंटिटीज एंड उसको उस डॉल में डाल देंगे. सो वो लाइव डॉल होगी एंड दे विल स्टार्ट डूइंग थिंग्स टू द डॉल. ऐसे पॉजिटिव भी कर सकते हैं किसी के साथ? वुडू में पॉजिटिव नहीं होता है. अगर डॉल बना रहे हैं किसी के लिए, नेगेटिव ही होगा बिकॉज हमने एक एंटिटी उसमें डाल दी है और वो जो एंटिटी आई है ना, सो दैट एंटिटी इज गोइंग टू ईट अप योर एनर्जी. इट इज नॉट गोइंग टू गिव यू एनर्जी. पॉजिटिव करना होगा तो यू विल हैव टू कॉल एंजल्स, अच्छी एंटिटीज हु विल हेल्प यू हील दैट पर्सन. Have you ever come across anyone who had this black magic done on? A lot. See, I come from Assam. You've heard about Meong.
इट्स अ टाउन जहाँ पे ब्लैक मैजिक इज प्रैक्टिस. दे हैव अ म्यूजियम फॉर ब्लैक मैजिक. सारे ब्लैक मैजिक की चीज़ें रखी हुई है वहाँ पे. बहुत ज़्यादा कॉमन है, होता है. एंड आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ केसेस, बट सारे हर केसेस मैं नहीं लेती हूँ बिकॉज दे आर, जो करते हैं ना, दोज पीपल आर वेरी स्ट्रॉन्ग. दे कैन हार्म यू ऑल्सो. एक बार देयर वाज अ गाय, ही केम, ही वाज इन हिज लेट 40s. तो उनके ऊपर किसी ने कुछ किया हुआ था एंड वो बंदा, सब कुछ ख़त्म हो गया उनका, और बीमार होके ना उनकी बॉडी ने ऐसे बैंड होनी शुरू हो गई. यंग है, डॉक्टर को से कि क्या हो रहा है, कुछ नहीं. तो आई सेड कि ठीक है, वो टैरो से यू कैन नॉट चेक दैट, यू हैव टू सिट एंड एक्सेस एनर्जीज. तो आई सेड मैं रात को बैठ के ना, आई विल एक्सेस एनर्जीज एंड आई विल सी कि क्या है. तो जैसे ही मैं ऐसे बैठी रात को, आई सॉ अ लेडी, वो बैठी हुई थी साधना में, एंड शी ट्राई टू वार्न मी, एंड मेरी नाक से ब्लड आना शुरू हो गया. शी वार्न मी टू स्टे अवे. सो आई अंडरस्टूड. आई सेड सॉरी, आई विल नॉट गेट इनटू दिस, आई एम आउट ऑफ इट. सो आई कट माई कॉर्ड्स, आई केम बैक एंड आई टोल्ड दैट पर्सन कि आई वोंट बी एबल टू हेल्प यू. बट देन ऐसे कभी मतलब ऐसे नहीं लगता कि वो जैसे डॉक्टर्स की ओथ होती है ना कि नहीं हमने तो हेल्प करना ही करना है, और यू रेकमेंड देम टू समबडी हु इज मोर सीनियर? और या वी कैन रेकमेंड, बट हर जो सीनियर है वो भी लेना नहीं चाहते हैं. सी, यू आर हियर टू हेल्प बट यू आर नॉट हियर टू किल योरसेल्फ, राइट? और हर चीज़ में आप नहीं घुस सकते हो. यू हैव अ फैमिली, देखना पड़ेगा. कोई ऐसा कभी सिचुएशन हुई है जहां आपने चाह के किसी को उसकी ही मतलब नहीं बताई कि ये प्रॉब्लम है, लाइक इन दिस सिचुएशन आल्सो you did not tell the person what happened to you, but sometimes you can see what is happening in the charts. And have you ever refrained from telling someone कि क्या दिख रहा है आपको? हाँ, couple of times मैंने देखा people who might leave, देखा, but I haven't told them. बड़े बड़े एक्सीडेंट्स देखे लोगों के, लेकिन नहीं बताया, बट बोला कि you have to be very careful, अगले ये दिन भारी है, so just take care of yourself. So how do you sleep at night with this? I can't sleep at night, most of the times. I have a very troubled sleep. So what I do, मतलब जब मैं सोती हूँ ना, so my kundalini, I had a kundalini awakening, so 3 episodes अभी तक हो चुके हैं. So when I sleep, मेरे आँखों के सामने अंधेरा नहीं होता है. I see light, और I will sleep blue light. And when I'm sleeping, I feel that I'm floating. ऐसा होता है, लगता है मैं गिर जाऊँगी. And रात को ऐसी चीज़ें, तो बीच में तो बहुत ज़्यादा हो गया था. देन आई टोल्ड माई गुरु, पूरी रात में जगी रहती, मुझे सोने से डर लगता था. तो आई टोल्ड माई गुरु, तो शी मेड मी मेक अ यंत्र. हाथ से मैंने वो यंत्र बनाया. अब हमेशा मैं उसको पिलो के नीचे डाल के सोती हूँ. उसके बाद से आई हैव स्टार्टेड स्लीपिंग पीसफुली. ये तो बहुत सीरियस काम है. मतलब फॉर मी इट्स लाइक दो लोगों की लड़ाई हो रही है, उनको सॉर्ट आउट करा दो एंड आराम से सो जाओ जाके. बट व्हाट यू डू इज सम सीरियस बिजनेस. ओके, जब आप ऐसे कोई सेशंस करते हो, सो हाउ डू यू रिकवर योरसेल्फ? लाइक basic maybe, how do you take care of yourself? See, a lot of work goes into taking care of yourself. You have to maintain a spiritual hygiene. So मैं रात को जब देखती हूँ, मुझे लगता है कि बहुत heavy energies है, immediately I'll do a ritual for cord cut. फिर उसके बाद I'll take a bath. I have some chants which मेरे गुरु ने दिया है, वो करूँगी. And मुझे अगर बहुत ज़्यादा लगता है, I will message my guru, this has happened and I'm going to sleep, please take care. So she'll give me protection. तो ऐसे करते हैं. रात को साइकिक अटैक्स होते हैं. एक बार तो दैट वाज अ वेरी हॉरिफिक इंसिडेंट. मैं रात को ऐसे सो रही थी एंड आई जस्ट ओपन माई आइज, आई सॉ अ मैन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, और वो मेरे ऊपर तंत्र कर रहा था. सो आई वॉज लाइक आई एम ड्रीमिंग. मैंने आँख बंद कर ली, थोड़ी देर बाद फिर खुली एंड फिर दैट मैन वॉज देयर. सो आई जस्ट क्लोज माई आइज एंड आई स्टार्टेड प्रेइंग जो चैंट्स थे मेरे, एंड आई लॉक्ड माई ऑरा एंड आई स्लेप्ट. नेक्स्ट डे इमीडिएटली आई कॉल माई, एंड नेक्स्ट डे मेरा ना यहाँ से इतना दर्द हो रहा था, आई कुडंट गेट अप. तो आई न्यू देयर वाज सम साइकिक अटैक at night. So then I called my guru and I told her. Then she checked and she told me, yes, someone was trying to do something on you, but you were protected. So इसीलिए वो साइड से कर रहा था, तुम्हारे ऊपर आके नहीं कर पाया. देन शी हेल्प मी. मैंने 40 दिन का रोज़ रात को बैठ के फ्री में बैठ के अपने लिए रिचुअल करनी पड़ी मुझे. इतनी मेहनत जस्ट टू कम आउट ऑफ दैट थिंग. डर नहीं बन जाता कि अगर मुझे कर रहे हैं तो मेरी फैमिली पे भी करेंगे? माई डॉटर गेट्स डिस्टर्ब्ड. किसी भी दिन अगर मुझे कुछ होगा, माई डॉटर इज ऑल्सो गिफ्टेड, शी कैन सी थिंग्स, सो शी ऑलवेज गेट्स डिस्टर्ब. तो उसको मैं बहुत प्रोटेक्ट करके रखती हूँ. हमने जब देखा है कि रिलेशनशिप्स ना हर समय लव की वजह से एंड नहीं होते. देयर इज मोर टू इट. सो डू यू सी अ पैटर्न इन पीपल दैट they follow because they get always involved in a toxic relationship, या दूसरी तीसरी शादी भी हो गई है तब भी सेम प्रॉब्लम्स फेस करें? क्या पैटर्न्स होते हैं उनकी अपनी पर्सनल लाइफ में जिसकी वजह से वो इस टाइप के पार्टनर्स को अट्रैक्ट करते हैं? सी, मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम होती है ना, दे आर ओवर गिवर्स. हर कोई आप देखना दूसरे की लाइफ सेट करने में लगा हुआ है, स्पेशली फीमेल्स. जैसे ही बॉयफ्रेंड बना,
आपको उसको करियर बनाना होता है सब कुछ छोड़ के। हाँ, जैसे उसका करियर बना फिर उसको सेटल कराना है, उसके इन्वेस्टमेंट्स कराने हैं। सो यू आर ऑलवेज वर्किंग ऑन अदर्स, और आप खुद से यू आर वर्किंग ऑन दैट पर्सन। फिर आप एक्सपेक्टेशन रखते हो कि वो इंसान भी मेरे लिए करे, और जब नहीं करता है देन यू स्टार्ट हैविंग अ प्रॉब्लम। एंड वो बंदा बोलता है कि मैंने तो नहीं बोला था करने के लिए, व्हाई यू एक्सपेक्टिंग। हर रिलेशनशिप में यू विल सी दिस, एंड स्पेशली आई सी फीमेल्स डूइंग इट। व्हाई? कोई आदमी आते ही तुम अपने आप को क्यों भूल जाती हो? हम सडनली मदर बन जाते हैं हाँ, सबकी। सबकी। इवन आफ्टर मैरिज वी वुमेन आर डूइंग इट। मैं भी कभी कभी करती हूँ अपने हस्बैंड के साथ। But then at the same time, sometimes there is a deeper meaning to it. Even in friends, sometimes you're getting the similar set of friends कि जो आपको यूज करके चले जाते हैं, और sometimes कोई आपको backstab कर देता है, things like that. You attract certain people because of some karmic relations also. What are your thoughts on that? When you are attracting the same kind of person or situation in your life again and again, that means you are in a loop. The universe is trying to teach you something and you are not learning. So बार बार आपका रिविजन चल रहा है। जब तक आप नहीं सीखोगे, नहीं निकलोगे, तब तक ये होता ही रहेगा। So इसमें गाइडेंस टैरो की हेल्प करती है? हाँ, आपको क्लियर पिक्चर देती है ना कि आप में क्या गलती है, आप क्या गलत कर रहे हो। तो टैरो इज अबाउट यू। टैरो इज बेसिकली अ मिरर। जब ये टैरो रीडिंग करते हो ना, आपको एक शीशा दिखाएगी और टैरो बताएगी कि ये आप हो, जो लोग देखना नहीं चाहते। Most of the people, I think nobody wants to look at themselves. And sometimes I feel that the person you love the most, that person becomes the biggest lesson in your life. And karmic, non-karmic, पता नहीं, but कुछ ना कुछ तो हर कोई इंसान सिखा के जाता है आपको लाइफ में। तो learn from it and then move on is what I believe in. And at the same time, some people are removed from your life for a certain reason. उनके बेशक आपकी लाइफ में काम खत्म हो, अब वो चले जाते हैं। जब वो चले जाते हैं तो is there anything that we need to do? Like for example, मेरा किसी के साथ लड़ाई हुई, हम अलग हो गए, for any reasons, चाहे वो बॉयफ्रेंड हो, चाहे वो फ्रेंड हो, चाहे वो कोई रिलेटिव हो, उनके साथ हमें कोई एनर्जी वर्क करके ख़त्म करना चाहिए। लाइक कोई कॉर्ड्स कट करनी चाहिए। हाउ डू वी नीड टू फिनिश आवर कार्मिक कनेक्शंस विद देम? सी, बहुत ज़रूरी है ये करना। एंड फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू, कोई भी हंकी डोरी बड़ी चीज़ करने से पहले ना, फर्स्ट थिंग, जो भी अगर आपकी लाइफ से जा रहा है उसको पीसफुली जाने दो, विथ रिस्पेक्ट। फर्स्ट थिंग यही करना है। जो भी करके गया, जितना भी बुरा करके गया, ऑलवेज बिलीव कि कुछ ना कुछ वो सिखाने आया था। ही वॉज अ एक्टर इन योर लाइफ। आप सोल कॉन्ट्रैक्ट में उसको लेके आए थे, तो उसको थैंक यू बोलना है कि हाँ, सिखा के गए हो, और हैप्पीली रिस्पेक्टफुली उस इंसान को जाने दो, विच यू डोंट। हम हमेशा ग्रज रखते हैं, उसके बारे में बार बार बात कर रहे होते हैं, डिस्कस कर रहे होते हैं। वी शुड नॉट डू दैट, स्टॉप डूइंग दैट। एक आई फील कि जो आजकल सब लोगों को लगता है ना दैट ही डजंट लव मी एनीमोर और समथिंग जस्ट चेंज्ड, और एक माइंडसेट होता है कि आई एम पुटिंग ऑल द एफर्ट बट द अदर पर्सन इज नॉट। सो आई फील कि जब सामने वाला एफर्ट डालना बंद कर देता ना, तो ये ऑलरेडी एक साइन होता है द पर्सन इज रेडी टू गो। कैन यू फाइंड आउट फ्रॉम टैरो कार्ड्स दैट द पर्सन इज नॉट इंटरेस्टेड इन यू? हाँ, टोटली पता चल जाता है। Can you tell them? हाँ, You tell them. हाँ, I tell them. If he's invested in somewhere else also, you can tell them. बहुत लोग होते हैं कि स्पेशली मैन, एक टाइम आ जाएगा उनको रिलेशनशिप से ज़्यादा करियर में फोकस कर रहे होते हैं। सो दैट्स अ ट्रू पिक्चर। वी नीड टू टेल द लेडी कि उसका फोकस है करियर। Is still positive. हाँ, कि अगर वो करियर पे फोकस कर रहे अच्छी हैं बात तो है, हाँ, बट so you नहीं need to be लोग, supportive. हाँ, बट पीपल डोंट टेक इट। नो, What are the most common issues that people come to you for? सबसे बड़ी इशू जो आती है मेरे पास इज रिलेशनशिप। एवरीबडी इज स्ट्रगलिंग विद रिलेशनशिप। वही है ना, ओवर गिविंग एंड एक्सपेक्टेशन बाहर से। हमेशा लोग खुद के साथ नहीं जीना चाहते, उनको हमेशा कोई और चाहिए, उसके ऊपर प्यार भी करो, डम भी करो, सब कुछ किसी और पे। सो आज तक मेरी जितनी भी बड़ी रीडिंग्स हुई है, सो आई चार्ज अ लॉट फॉर, अगर मुझे कोई इमीडिएट रीडिंग लेती हूँ 24 या 48 आवर्स में, तो उसके चार्जेस बहुत हाई हैं। तो उसमें आज तक जितने भी आए हैं रिलेशनशिप के आए हैं, करियर हेल्थ नहीं आया। बॉयफ्रेंड यंग, मतलब 28-30 ईयर ओल्ड, यंग नहीं बोल सकते, क्वाइट मेच्योर्ड, बट वही लड़का फ़ोन नहीं उठा रहा है। एक तो लड़का मर्डर करके जेल चला गया। अच्छा, शी इज़ कमिंग टू मी फॉर रीडिंग, आई वांट दिस गाय बैक। okay. Do you help such people? I give guidance.
हेल्प तो नहीं कर सकते। डू यू थिंक जो छोड़ के चला गया उसको वापस लाने के लिए टैरो पे भरोसा करना चाहिए और टैरो का सपोर्ट लेना चाहिए और हीलिंग का सपोर्ट लेना चाहिए और इवन मैनिफेस्टेशन का सपोर्ट लेना चाहिए? तीनों अलग चीज़ें हैं। फर्स्ट मैनिफेस्टेशन आल से कभी भी मैनिफेस्टेशन में किसी और इंसान को मैनिफेस्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ अगेंस्ट द विल ऑफ दैट पर्सन। इफ़ यू डोंट लव समबडी एंड कोई और आपको मैनिफेस्ट करे एंड यूनिवर्स आपको उसके झोली में डाल दे, इट विल बी अनफेयर, राइट? सो दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। सो मैनिफेस्ट करना है तो एक अच्छा सोलमेट मैनिफेस्ट करो, प्यार करने वाला बंदा मैनिफेस्ट करो, दैट इज़ फाइन। पर्टिकुलर इंसान को कभी मैनिफेस्ट मत करो एंड यू डोंट इवन नो कि लॉन्ग रन में वो बंदा तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि नहीं होगा। एंड टैरो में येस यू कैन फाइंड आउट कि वो बंदा आपके लिए सही है नहीं है, या छोड़ के चला गया, इन्वेस्टेड है किसी और चीज़ में, ये सब कुछ पता चल सकता है। सो यू कैन ऑलवेज टेक अ टैरो गाइडेंस। और जैसे अब अभी आपने जो बोला कि वो जेल चला गया, तो उसको कैसे मतलब आप हैंडल करोगे कि मतलब कोई टोटली मतलब डिसऑर्टेड ही है, यू नो, सामने वाला बंदा जेल तो चलो एक एक्सट्रीम हो गया, बट आपको पता है कि उसकी यू नो वो हील्ड नहीं है, उसकी अपनी बहुत हीलिंग बाकी है अभी, उसके साथ जुड़ के मेरा और काम खराब ही होने वाला है, बट स्टिल आप लगे हुए हो उसको मैनिफेस्ट करने में या उसको मतलब यू नो बिकॉज वी एडिक्टेड ना, चाहिए नहीं मिला डोपामीन, वही चीज़ होती है ना, प्यार से ज़्यादा इट्स डोपामीन। उसको कैसे हैंडल करना चाहिए? सी उनको तो ट्राई करना चाहिए कि इट्स अ बिग साइन, अगर वो चला गया है सो यू नीड टू लेट गो। लेट गो नहीं हो पाता है लोगों से। यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर। अब उस रिलेशनशिप को आप सोचो, उस लड़की की फैमिली एक्सेप्ट करेगी, सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी, सो शी हैज़ टू गो थ्रू सो मच पेन, सो वाई शी हैज़ टू गेट इन टू इट? इफ़ यू लव योर सेल्फ एनफ यू विल नॉट गेट इन टू ऑल दिस थिंग्स। और आप यहाँ पे किसी को सेव करने के लिए नहीं आए हो। अपने आप का ध्यान रखो, लाइक इन द प्लेन दे से दैट पहले अपने आप को मास्क पहना। हाँ, यू आर द यूनिवर्स, यू आर द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। And you know, in this similar this situation, there are many girls or even men who get attracted or get involved with a married partner. Young girls, you know, 25, 30, and एक तो बड़ा मतलब famous word है sugar daddy, sugar mommy, you know. So how why does this happen and how should people come out of it? See, these things are fed first. I never knew what was sugar daddy. Instagram से पता चला मुझे. My Gen Z sister told me sugar daddy. So we didn't know कि क्या होता है. So एक तो आपको फीड किया जा रहा है वो सारी चीज़ें और सोसाइटी को डिस्टॉर्ट किया जा रहा है. एंड बोला जाता है if you so sugar daddy means what? He's rich, he's taking care of everything. So आपको क्या चाहिए? प्यार नहीं चाहिए. ना प्यार नहीं है उसमें. That person is a resource for you, right? So जो रिसोर्स से आप ले रहे हो आपको देना भी तो पड़ेगा. That is not told to you. तो these things are wrong. You should not be doing it. How does one stop? नहीं होता मतलब I have clients who are like मैं एक से निकलती हूँ दूसरे के साथ फंस जाती हूँ और you know every time कुछ ना कुछ एनर्जीज आती हैं, तो वो क्या ऐसा करना चाहिए जो आप अपने आप को हील क्या करना चाहिए कि आप उस टाइप के टॉक्सिक रिलेशन में किसी और का घर खत्म करने के लिए ना मतलब उतर आओ कि अपनी वाइफ को छोड़ दो, मेरे लिए बच्चे हैं उनको छोड़ दो। मतलब आई डोंट सी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में बहुत ज़्यादा आदमी अपना घर छोड़ के जाते हैं। हाँ मतलब बहुत रेयर 1% होगा, शायद 0.1% होगा, बट स्टिल गर्ल्स गेट इनटू डिप्रेशन बिकॉज वो छोड़ेगा नहीं, एंड देन गर्ल्स कम टू थेरेपी कि क्या करना है। सो हाउ डू यू हैंडल सच क्लाइंट्स? सी उसमें तो आपको वही थेरेपी, आपको गाइडेंस देना पड़ता है, बताना पड़ता है कि यू नो अगर इसके साथ रहोगे क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, यू हैव टू टेल देम। और अगर छोड़ दोगे तो लाइफ में क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, एंड दे आर द वंस हु नीड टू डिसाइड। यू कैन नॉट फोर्सफुली हील समवन और चेंज समवन, आप सिर्फ गाइडेंस दे सकते हो। और ज़्यादा घुसोगे ना आप अपने कर्मास भी अटैच कर रहे हो, तो मेरे घर में वो चीज़ें होने लग जाएंगी ऑलवेज, बिकॉज यू अट्रैक्ट नो, जैसे लोगों के साथ बैठोगे बातें करोगे दोज थिंग्स विल शो अप इन योर लाइफ। बट ये एक्चुअली रियल होता है? डज दिस रियली हैपन? मतलब ये एनर्जीज रिवॉल्व करती है, इतनी स्ट्रांग होती हैं? बहुत ज़्यादा। आप सोचो मैं अगर आपके सामने रोज़ बोलती रहूँ मेरी तबीयत ख़राब है, मैं कमर में दर्द होता है, ये होता है, 2 दिन बाद आपको भी कमर में फील होगा कि मुझे भी दर्द हो रहा है। वो साइकोलॉजी है एंड वी अट्रैक्ट। कुछ मतलब एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, जब हम अपने लिए पार्टनर ढूंढ रहे होते हैं तो क्या हमें एक पार्टनर के अंदर देखना चाहिए बिफोर वी से आई डू? सबसे बड़ी चीज़ आपको ये देखना है कि अगर वो मैन है तो आप सोचो कि आपकी अगर बेटी है, क्या आप अपनी बेटी की शादी उससे करवाओगे? इफ़ दैट पर्सन इज़ राइट फॉर योर डॉटर देन ही इज़ राइट फॉर यू, बिकॉज योर डॉटर इज़ योर इनर चाइल्ड। You know, while I was scrolling and I saw one reel which said
if you put that, alcohol on your private part, it, kind of activates your Venus. Is that true? No, it's not true. First of all, तो अगर आप अल्कोहल लगाओगे प्राइवेट पार्ट पे, इट्स सो डेलिकेट, यू विल डेफिनेटली विजिट योर डॉक्टर. बट हाँ, वेनस को एक्टिवेट करने आप बेटर चीज़ें लगा सकते हो. उसकी जगह आप दही इस्तेमाल करो, वो आपकी स्किन को नरिश भी करेगी और वीनस को भी एक्टिवेट करेगी. मैंने एक और चीज़ सुनी थी कि अगर आपको अपने रिलेशनशिप ठीक करना है तो दोनों अपने अंडरवेयर्स बांध के रख दो. ये बड़ा ही स्टूपिड सा था, बट आई डोंट नो, किसी ने बोला एंड आई जस्ट कॉट माय आई. होता है इससे कुछ? सी, वो वशीकरण टाइप के रिचुअल्स में आता है जहाँ पे आप सेक्सुअली एक दूसरों को वो करो, टाई अप करो. सो यू शुड नॉट बी डूइंग इट. तो उसमें लव नहीं आएगा, उसमें सिर्फ सेक्सुअल वो ही आएगा. किसी को अगर वही चाहिए तो काम करेगा? आई थिंक सो. Because sometimes people have everything, but their sexual life is little disordered. So for them, do you think that this can actually work? Yeah, but I haven't tried, so I don't know. What is the one message that your soul wants to share with our viewers today? See, I would say that you are the universe. बाहर कुछ भी नहीं है. ये दुनिया ना आपके पैदा होने से पहले ब्लैंक था, आपके जाने के बाद ब्लैंक रहेगा. तो जो भी है, एवरीथिंग इज़ यू. सो खुद पे कॉन्सेंट्रेट करो, अपने पावर को जानो. एक ना छोटा सा क्विक सा रैपिड फायर आई वांट टू डू विद यू. वेरी स्पॉन्टेनियस, ओके? टैरो myth that you want to break. It's not for future prediction. It is only and only for guidance. One energy draining habit that one should stop today. Complaining about your life, complaining about others. Complain करना बंद कर दो. Negative self-talk. A daily's ritual for positive energy. Affirmations या अपने बारे में अच्छा बोलो. हमेशा जब भी अपने मुंह से कुछ निकालो, बोलो, अच्छा बोलो. One sign someone's intuition is very strong. They would say no very often. Yeah, now I'm thinking about it. बहुत मुश्किल होता है ना बोलना. Right. क्योंकि आपको पता चल जाता है कि अगर हाँ बोला तो आप फंस जाओगे. One way to instantly raise your vibration. Gratitude. Say thank you. And say thank you to yourself first. It suddenly changes your mindset to positivity. One thing people misunderstand about spirituality. People think spirituality is following your religion. Spirituality is following yourself. Is it possible to remove negative energy from your life? Yes, always. You have all the power. Wonderful. If someone wants to start their spiritual journey today, what should be their first step? Start sitting with yourself first. Know yourself first. जब तक खुद को नहीं जानोगे, दूसरों को help करना next to impossible है. After working with so many people and learning their energies, what is one thing that you wish that everybody understood about themselves? That nobody can change others. You are the one who need to change yourself. Thank you so much for coming on the podcast. It was lovely talking to you. And I'm looking for many more podcasts because I think there is so much more to ask you. There are so many more topics that I would like to cover with you. But for today, thank you so much for coming.